अमला रुइया ने। अमला रुइया, जिन्हें उनके इस अद्भुत काम के लिए लोग पानी वाली माँ कहकर बुलाते हैं। So I went in search of other alternative methods and to my great cutting water. तो हम ये क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? मैं तो अपने घर में ऐसे ही करती हूँ। कभी और पानी को बचाने की जरूरत के लिए उन्हें जागरूक किया। शुरू में स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। I found certain NGOs already engaged in this world, in this kind of work. I knew it was conceived with the idea of building check dams. नमस्कार। आपका नाम बहुत ही अच्छा लगा, मधुकर स्वयंभू। एक तरफ आप कृष्ण भगवान हैं और एक तरफ आप शिवा हैं, स्वयंभू। बहुत कम लोग मतलब समझ पाते हैं नाम का, आपने समझा, थैंक यू। सर इतने सालों में मेरे को भी पहली बार समझ में आया। सेल्फ इफल्जन, उसको किसी और के आधार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं हमेशा है ही है। थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस मैडम। Be enlightening us on so many different issues about water. I'm very excited. So it's about how does native ecology affect the functionalities of NGOs and social enterprises, and I'm just going to start off the presentation. The ecology is something which is more or less understood to everybody. Here the jungle ecology is shown here. We will be talking about the ecology in soil, water and air in the presentation. So let's begin. The agenda is we'll start from the objectives of the NGOs, then we'll link that with the ecology, then comes the Vedic science and the water bodies and wetlands, and contamination, resurrection of the ecology. Then comes the revenue and the sustainability options, and finally some case studies and the recognition to the technology which has been given by various organizations. So first thing first, the objectives of the NGOs. There are two kinds of NGOs or the social enterprises. One is urban, one is rural. The urban usually has the following objectives, which is sanitation, hygiene, public health, vector-borne diseases and waterborne diseases, poverty alleviation, tourism development, livelihood, drinking water, waste management, tree plantation. There are plenty of organizations which are interested in tree plantation these days, and disaster management. Basically, we will focus upon not the disaster relief, but rather eradication or giving a cushion against the disaster. We instead of waiting for the disaster to happen and then do the disaster recovery, we'll rather focus on the disaster prevention. And coming on to the rural side, it is rural economy reinstatation, farmer distress relief, water for drinking as well as irrigation, waste management. There are three kinds of waste in rural, which is farm waste, wastewater, and animal waste. Agroforestry and reforestation, livelihood, sanitation and hygiene, public health, and disaster management. What is the meaning of vector or waterborne diseases? Ma'am, vector-borne diseases are primarily the diseases which are caused by a carrier, like mosquito in present day scenario. Okay. There are many mosquito-borne diseases like dengue, malaria, and chikungunya and whatnot. So these are all because of the mosquitoes. Similarly, there are other organisms which are the carrier. So all those diseases which are carried by a carrier are the vector-borne diseases, and all those
Just a sec. Oh. Yeah, sorry. And all the diseases which are borne by water, like we have diarrhea, we have typhoid, and those kind of problems. So these are waterborne diseases. So both the diseases are causing the public health problems, and ultimately everything is going to be linked with water, soil, and air. Like we'll start with the urban objectives. Sanitation is disinfected fresh water can solve the sanitation and hygiene problem. For vector and waterborne diseases, again, disinfected fresh water and mosquito eradication is one of the key factors. Poverty alleviation is again creating better opportunities for livelihood, and livelihood in turn is linked to the soil, water, and air. Uh, Tourism development, again, any tourism spot will develop around a water body. If you actually look at it, whether it is lake like we have Nainital and Dal lakes, which are creating the tourism opportunities, or whether it is a seashore, or whether it is a river or a waterfall. Again, livelihood is all about profitability and opportunities. Water for drinking, of course, it is around water. Waste management is, if we look at the liquid waste management part, it is all about consumption of the sewage and creation of fresh disinfected water. Tree plantation, again, if you actually look at it, we don't plant trees, we plant saplings, and the saplings need a lot of fresh water to grow into trees. So, if you want to do a successful tree plantation, not like the way politicians do, wherein they plant lakhs and lakhs of trees year over year at the same place where they don't survive even for a year, and the next year they can again do a replantation there. And disaster management, like if you look at the flood, or you look at the drought, or you look at the typhoons, everywhere you get a question if the soil, water, and air are in their natural best. You get a lot of question from the natural resources. So, how flood and drought are directly linked with water is what we'll cover in the upcoming slides in the presentation. Coming on to the rural side of it, rural economy reinstation is, if you look at rural economy, largely it is based on agriculture and animal husbandry, and both of them are directly linked to soil, water, and air quality. Farmer distress is all about agriculture and animal husbandry again linked directly with soil, water, and air quality. Water for drinking and irrigation is, of course, about water. Waste management is farm waste, agri waste, and wastewater, animal waste, and all of them can be linked towards waste management, and this can be the source of a huge revenue. So we can actually make all the panchayat go aid free. I mean, they are largely dependent upon the aids that come from the government, grants that come from the government. Instead of grant seeking organization, we can turn around the panchayat into a grant giving organization, provided we do the right management of farm waste, wastewater, and animal waste. Uh, Again, coming on to the agroforestry and reforestation, it is all linked with availability of water, so that saplings could grow into trees and number of trees grow into forest. Livelihood is again water, soil, and air. Sanitation and hygiene, of course, I explained it earlier. Public health and vector-borne and water-borne diseases again linked to water quality. And disaster management, as I said, flood and drought is what we'll cover in the upcoming slides. So, coming on to the core ethics of the technology, there is a difference between the Western science and the Vedic science. Western science says water is H2O, soil is dirt, and air is mix of gases.
These are all substances, and substances are dead. Man is the intelligent being. It is man is the God's gift to the planet, and we are supposed to consume nature as a resource. So we are supposed to understand the natural processes and tame the nature. That is where they go wrong. If you look at the Vedic science, the ideology is entirely different. It says there are five key elements of life, which are water, soil, and air, fire, and the cosmic energy that comes onto the planet every day, uncontaminated as sunlight. And because these are the key sources of life on the planet, they themselves cannot be dead. So they are living ecologies. And the moment we understand that these are living ecologies, our approach or our treatment will be entirely different. So here what we believe is that nature is supreme, man is just an expression of the nature, it is just a manifestation. And nature is so huge that nature is worth worshipping. So the Vedic mantra or the shlok goes Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate, which means if you take whole out of whole, what is left is also whole, and what you have taken out is also whole, which stands 100% true when you look at the life sciences and the natural sciences. That is why it's my personal opinion that Vedic science is the largest possible repository of natural and life sciences on this planet, because the way we understand the Vedas understand the natural sciences, nobody else understands that. And if you take it into the mathematical calculation, all finite numbers will make this statement incorrect. Because if you put it into an equation, it will be 2 minus 2 equal to 2. So because it is a finite number, obviously it is not possible. But the moment you talk about infinite, infinity minus infinity equals infinity. 0 मैं minus आपसे 0 थोड़ा सा equals एक 0. रिक्वेस्ट So करना that चाहती becomes हूँ true. कि जो मेरे साथ आए हैं वो अंग्रेजी की जगह जी हिंदी मैम. ज्यादा समझेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको हिंदी में Okay. भी बोलेंगे। अभी तक जो बोला है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो आप बोलेंगे आधा जी. हिंदी आधा इंग्लिश मिक्स बोलेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। Sure, ma'am. Coming on to understanding of the wetland and the water body, जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो ये जरूरी है कि कोई भी नेचुरल वाटर बॉडी जो है वो होती कैसी है। तो नेचुरल वाटर बॉडी की जब हम बात करते हैं अनकॉन्टामिनेटेड, जो पोल्यूटेड नहीं है, जो पोल्यूटेड नहीं है, जो प्रकृति ने वाटर बॉडी बनाई है। देखिए अभी जो जल संकट है, जो वाटर स्ट्रेस है, उसको तो हम सभी लोग समझ रहे हैं, बिकॉज जल शक्ति मंत्रालय में जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी खुद की स्टेटमेंट ये है कि 54% जो भारत है वो जल संकट से जूझ रहा है, और 22% जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो सूख चुका है। मतलब जो भूमिगत जल भंडार है वो 22% तक सूख चुका है। इसीलिए गर्मियों में हमको इतनी ज्यादा पानी की किल्लत नजर आती है। लेकिन ये प्रेजेंट कंडीशन है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो वाटर बॉडीज हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या है, उनके दायित्व क्या है, जो नेचर ने, प्रकृति ने उनको दिए हैं। तो हम पहले ये समझ लें कि अनकंटामिनेटेड, अनपोल्यूटेड नेचुरल वाटर बॉडी कैसी होती है। तो उसमें सबसे समझने की जो बेसिक सी बात है, वैसे हमको नजर आता है लेकिन हम शायद ध्यान नहीं देते। सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर पानी है और उसके ऊपर हवा है। तो ये तीनों, मिट्टी, पानी और हवा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एक वाटर बॉडी में। अब हमें जैसे नदी तो बहती हुई नजर आती है, लेकिन जो जलाशय हैं, जैसे झीलें हैं, तालाब हैं, ये हमें रुका हुआ पानी नजर आता है। लेकिन पानी कभी भी रुका हुआ नहीं होता है। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाइपोलर होता है, ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है, नीचे पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब भी कोई बाइपोलर चीज, जो मैग्नेटिक चीज है, उसको आप मोशन देंगे तो वो रिवॉल्व करेगा, जैसे धरती रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं। तो जब भी बाइपोलर चीज मूव करेगी तो वो स्पाइरल मोशन में गोल गोल घूमेगी। जब भी तालाबों में जो पानी है वो मूवमेंट में आता है हवा की वजह से, या धरती के रोटेशन की वजह से, या
पानी की विस्कोसिटी जो जो घनत्व है उसके कम होने की, बिकॉज पानी तरल है, तो तरल चीज में हमेशा लहरें उठती रहती हैं, जैसे आप समुद्र की लहरें देखते हैं। तो उसके चलने से बेसिकली होता ये है कि जो नीचे की मिट्टी है उसकी ग्राइंडिंग होती है, वो पिसती रहती है, और पिसने की वजह से जो मिट्टी है वो, जैसे हम मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं, तो हमने जैसे धनिया या पुदीना जो भी डाला है, वो उसके गोल गोल घूमने की वजह से वो कटता जाता है और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल में चटनी के रूप में आ जाता है। वैसे ही जब भी हम मसाला पीसते हैं, उसी प्रकार से जब जलाशय में जब जल घूमता है तो नीचे जो मिट्टी के कण हैं वो पिसते हैं, और वो पिस के वो सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सिल्ट जो है वो नैनो पार्टिकल है मिट्टी के कणों का, यानी कि मिट्टी के कणों से वो करीबन 16 गुना छोटा होता है। तो ये मिट्टी के बीच में से परकोलेट कर जाएगा और नीचे जाते हुए वो सॉइल कैपिलरी बनाता हुआ जाएगा। सॉइल कैपिलरी के थ्रू मतलब आप इसको मृदा मृदा कोशिकाएं कह सकते हैं, मृदांध जो कोशिकाएं। मिट्टी के बीच में से मृदा कोशिकाएं में, मृदा मृदा इज मिट्टी एंड हाँ हाँ मृदा कोशिकाएं इज द कैपिलरीज। हाँ जी, मृदा कोशिकाएं। हाँ तो इनकी वजह से जो सरफेस वाटर बॉडी है और जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है, जो हाँ भूमिगत जल का भंडार है, दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, हाँ और इस लिंक के थ्रू पानी वर्टिकल मूवमेंट करता है बिना किसी मशीन, बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के। तो जब भी वर्षा के टाइम पे जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मानसून के दौरान, तो पानी ऊपर से नीचे जाता है, बिकॉज ऊपर जो सरफेस वाटर बॉडी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब बारिश होती है, ऊपर पानी बढ़ा, ऊपर प्रेशर बढ़ा, तो पानी सीधा नीचे जाएगा, एक्वीफर को रिचार्ज करेगा। और पीक ऑफ समर्स में जब इवेपोरेशन रेट, जब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है, तो पानी नीचे से अंडरग्राउंड एक्वीफर से ऊपर आएगा। तो ये पानी की एक वर्टिकल मूवमेंट होती है जो सॉइल कैपिलरीज के मृदा कोशिकाओं की वजह से होती है। और इसमें जब पानी ऊपर से नीचे जाता है तो जो भी एक्सेस मिनरल होते हैं उनको साथ ले जाता है। जब पानी नीचे से ऊपर आता है तो सॉइल लेयर्स में ही सारे मिनरल्स होते हैं, तो जो पानी नीचे से ऊपर आता है तो वो मिनरल लेके ऊपर आता है, जो भी एक्वा इकोलॉजी के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उनको सबको साथ में लेके आता है। तो ये एक्सचेंज होता है मिट्टी और पानी के बीच में। अब आ जाते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर एक खाद्य तंत्र है, एक एक्वाटिक फूड चेन है। अब ये खाद्य तंत्र क्या है, इसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये खाने का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसमें क्या होता है, हम कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बारे में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये सबको पता है। पानी भी करता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इस धरती पे जितना भी ऑक्सीजन हमको वायुमंडल में मिलता है, उसमें से मोर देन 50%, 50% से ज्यादा उसका प्रोडक्शन वाटर बॉडीज से होता है, जलाशयों से होता है। तो वो प्रक्रिया क्या है, सूक्ष्म जीवी तत्व हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है। सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में फोटॉन्स मिलते हैं जिसके जरिए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो एक तो आपको चाहिए फोटॉन, से दूसरा चाहिए कार्बन। अब कार्बन कहाँ से आएगा, तो वायुमंडल में जो भी कार्बन है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक ताप है वो बढ़ रहा है, यदि उसको कम करना है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जरूरत है, यानी कि जो कार्बन वायुमंडल में है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको सोखने की जरूरत है। और ये सोखने का काम करते हैं जलाशय। ये कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन चाहिए और फोटॉन चाहिए जो कि सूर्य प्रकाश से मिल रहे हैं। ये सब नैसर्गिक प्राकृतिक तंत्र है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं जलाशय में, और फोटॉन्स की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मीथेन सिंथेसिस करते हैं। मीथेन आपको पता है, जो आजकल जो बायो सीएनजी है उसमें पूरा मीथेन ही होता है।
मीथेन एक तरीके से फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है, और इसी प्रकार वो सल्फर सिंथेसिस भी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जलाशय में मिट्टी, पानी और हवा तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। अब सूक्ष्म जीवी तत्वों के लिए सिर्फ यही 3 पॉसिबल हैबिटेट हैं, यही रह सकते हैं वो, या तो मिट्टी में, या तो पानी में, या तो हवा में। तो ये एक जो बिगेस्ट पॉसिबल हैबिटेट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एक वाटर बॉडी में क्रिएट होता है। तो इसमें हर प्रकार के सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं किसी भी जलाशय में। वही एक वेटलैंड इकोलॉजी, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, और जो एक बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको क्रिएट करने के लिए एक एप्ट इन्वायरमेंट देता है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी मेटाबॉलिक रेट है, उनको कंज्यूम करते हैं प्लैंक्टन, जो जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्लावक। तो जंतु प्लावक भी होते हैं, और आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो प्लांट जगत के होते हैं, तो वो भी होते हैं। तो प्लावक जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, और प्लावक को जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछली है, क्रैब है, केकड़ा है, ये लोग प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं। और जो मल्टी सेलुलर, जो सबसे बड़े जो जलीय खाद्य श्रृंखला के जो सबसे ऊपर के जो जीव हैं, जैसे मछलियां हैं, या केकड़े हैं, या कछुए हैं, इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो अमोनिया होता है। अब अमोनिया को वापस न्यूट्रलाइज करने का काम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये एक जलीय खाद्य श्रृंखला है जिसके अंदर सब एक दूसरे को पोषण कर रहे हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो जब पानी भूमिगत जलाशय से भूस्तरीय जलाशय में आता है, तो वो सारे मिनरल्स को लेके आता है। इस तरीके से मिनरल साइकिल मेंटेन रहती है और जलीय खाद्य श्रृंखला मेंटेन रहती है। अब आ जाते हैं वायुमंडल की ओर। तो वायुमंडल और जल के बीच में जो एक्सचेंज होता है, एक मैंने आपको बताया जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो भी कार्बन बेस्ड गैसेज हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करता है वाटर बॉडी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन रिटेन कर लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है। ये जो ऑक्सीजन है, यही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का सोर्स बनता है, जिससे जितने भी जलीय जीव हैं जो ऑक्सीजन पे जिंदा हैं, जिनको हम इंग्लिश में एरोबिक कहते हैं, जिनको प्राण वायु की आवश्यकता है, जिनका प्रोडक्शन है, वो यहीं से होता है। तो एक तरह का एक्सचेंज तो ये हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पानी की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा दिया जाता है, जब वो हवा में एमिट होगा, तो आपने कभी भी देखा होगा, जब यदि कोई जल स्रोत अच्छी नैसर्गिक कंडीशन में है, प्राकृतिक कंडीशन में है, तो आप जब किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे या झरने के किनारे बैठेंगे, तो आधे पौने घंटे बैठने के बाद आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको वहां, जो शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, जो प्राणवायु मिल रही है, उसका जो आप जो सांस लेते हैं, तो 80% ऑफ द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रेन। जब हम थकते हैं तो हम अपने दिमाग से ही थकते हैं, और इसी प्रकार जब हम रिजुविनेट होते हैं, जब हम फ्रेश महसूस करते हैं, तो भी हम अपने दिमाग से ही महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग की ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा है। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, तो हम रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। तो वो रिजुविनेशन जो है वाटर बॉडी के किनारे इसी वजह से होता है, बिकॉज वाटर बॉडी के आसपास में जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, तो हम रिजुविनेटेड फील करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, हमारी थकान दूर हो जाती है। तो दूसरे प्रकार का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे होता है। अब तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है, नीचे पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो किसी भी जलाशय में जब
हम टॉप सरफेस को देखते हैं तो पूरा टॉप सरफेस निगेटिवली चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन होता है। जब जो वायु प्रदूषण का शमन है वो नैसर्गिक रूप से यहाँ पे होता है, क्योंकि हम जिसको वायु प्रदूषण मानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन की मात्रा जो हवा में है उसको हम वायु प्रदूषण नहीं बोलते। हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन को वायु प्रदूषण। अब पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। फ्री फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल्स हवा में इसीलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं और उनको लैंडिंग के लिए सरफेस चाहिए। वो लैंडिंग सरफेस वाटर बॉडी ही होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में या लखनऊ में या काशी में या काबुल में, ये सारी जो सिटीज जो कि लैंडलॉक्ड सिटीज हैं वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होता है। अगर आप कोस्टल सिटीज देखेंगे जैसे मुंबई है या चेन्नई है या कोचीन है या त्रिवेंद्रम है, वहां पे आपको पोल्यूशन कम दिखता है। कम इसीलिए दिखता है बिकॉज वो कोस्टल सिटीज हैं। और कोस्टल सिटीज में आपके पास एक बहुत बड़ा जलाशय है समुद्र के रूप में जो सारा पर्टिकुलेट मैटर को सोख लेता है। तो सारा पर्टिकुलेट मैटर वाटर बॉडी पर ही सेटल करता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है, इसमें आदमी को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यदि जलाशय आपके प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप में होंगे, स्वरूप में होंगे, तो सारा एयर पोल्यूशन नेचुरली कंज्यूम हो जाएगा। वो सारा जो पर्टिकुलेट मैटर है वो आके वाटर बॉडी के टॉप सरफेस पे सेटल करता है और वो एक्वा इकोलॉजी में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है, उसमें उसकी खपत हो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक किसी भी वेटलैंड या वाटर बॉडी जो है, जो जलाशय है या आर्द्र भूमि है, उसके अंदर ये उसके नैसर्गिक दायित्व हैं जो प्रकृति ने उसको दिए। अभी अगर हम इसको जल संकट से कनेक्ट करें तो जल संकट है क्यों? ये तो हमें मालूम है कि एक भी बूंद पानी की पृथ्वी के बाहर नहीं गई है। तो यदि सारा का सारा पानी यही है तो जल संकट पैदा क्यों हो गया? यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत एक जल के मामले में एक समृद्ध देश है जो प्रकृति ने बनाया है। हमारे यहाँ बहुत सारे जलाशय, बहुत सारी नदियां, बहुत सारे झरने, सब कुछ है। तो फिर जल संकट आ क्यों गया? भारत तो बदला नहीं, भारत तो वैसा का वैसा ही है। तो जल संकट आने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जो 73% जो इस ग्रह के ऊपर जो पानी है वो तो समुद्रों में है, जो कि खारा पानी है, जो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमारे इस्तेमाल का पानी कहाँ है? ग्लेशियर में भी नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी नहीं है। हमारे इस्तेमाल का पानी, हमारे पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ 1% है, वो सिर्फ जलाशयों में ही है। हमारे यहाँ पे एक कहावत होती है कि वो आदमी का एक्सपीरियंस बहुत है घाट घाट का पानी पिया। यानी कि हर घाट का पानी अलग होता है और हर घाट का पानी पीने लायक होता था किसी जमाने में। अब भारत में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घाट है जिसका पानी पी के आदमी स्वस्थ रह सकता है। बीमारी पड़ेगा। तो हमारे जल संकट का कारण से जो हम रेगुलर बेसिस पे कंटामिनेट कर रहे हैं, जो उनको प्रदूषित करते जा रहे हैं, उनका पानी पीने योग्य बचा ही नहीं। इस वजह से जल संकट है। तो जल संकट निवारण एक सीधा सीधा सा जो तरीका है ये है, लेकिन उन सबका कोई असर तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि जल संकट 54% भूभाग में पहले तो कभी था ही नहीं। तो यानी कि डिटोरिएशन बढ़ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो हम समस्या का जो हमारी समझ है वो शायद गलत है, या जो तरीका हम अख्तियार कर रहे हैं उसको ठीक करने का शायद वो गलत है। जस्ट सेकंड बंद करते हैं। सो बेसिकली हमको जो हमारी समझ है उसको जो जो प्राकृतिक तंत्र है उसके अनुरूप यदि हम ढाल लेंगे
तो हमारे लिए इस संकट का निवारण करना आसान होगा। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि जो प्रदूषण है वो कहाँ से आता है। क्या प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है या सिर्फ जो हम क्रिएट करते हैं वही प्रदूषण होता है? तो पानी का जो प्रदूषण है वो किस प्रकार होता है? पानी के प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, या मेटल्स और मिनरल्स है, जो हेवी मेटल्स हैं। मेटल्स और मिनरल्स ही पानी को कंटामिनेट करते हैं, क्योंकि हमें प्राकृतिक प्रदूषण कैसे होता है? जब भी कभी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो लावा तो सबसे अंत में आता है। शुरू में क्या आता है? जो हेवी मेटल्स और मिनरल्स है उनका गुबार पहले उठता है और ये सारा जाता है वायुमंडल में। अब ये जो गुबार है ये सब कुछ पर्टिकुलेट मैटर की तरह हवा में मौजूद रहता है, और ये पर्टिकुलेट मैटर सटे कहाँ होगा? वाटर बॉडी पे। तो हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स आ गए वाटर बॉडी में। अब जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट होता है, या कोई सेismic एक्टिविटी होती है, भूकंप आता है, तो जो स्थलीय जीव है उससे पहले जलीय जीवों को ये पता लगता है। तो जो वाटर बॉडी में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मछलियां हैं, केकड़े हैं, कछुए हैं, मेढक हैं, इनको पहले पता लगता है, क्योंकि पानी की जो विस्कोसिटी है, जो उसका घनत्व है वो ज्यादा है, इसलिए उसमें रहने वाले को पहले पता लगेगा कि धरती हिल रही है, धरती में वाइब्रेशन हो रहा है। अब ये उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? ये डर जाते हैं। डर जाते हैं तो ये एक्सक्रीट बहुत करते हैं। इनका एक्सक्रीटा होता है अमोनिया। तो इस तरीके से एक्सेस ऑफ अमोनिया पानी में आ गया। अब जब भी कोई हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो वाटर बॉडी के आसपास जिस भी प्रकार की वेजिटेशन है, उसके पत्ते, उसके बीज, फूल, ये सब पानी में गिरेंगे। इन सब में फॉस्फेट होता है, तो एक्सेस ऑफ फॉस्फेट आ गया। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कारणों से भी जलाशय जो हैं वो प्रदूषित होते हैं। और इस प्रदूषण का इलाज क्या होता है फिर? तो इसके इलाज में प्रकृति जो है वो खुद ही वाटर वीड्स क्रिएट करती है। जैसे हम जलपर्णी बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं, अजोला होता है, हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला को कुछ लोग कज्जी बोलते हैं। इस प्रकार के जो जलीय पौधे हैं वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनको प्रकृति ने बनाया ही इस तरीके से है कि जो फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट है, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो जल जो है वो एक तरह से शुद्ध होता जाता है, और इनका जो खाना है वो खत्म होता जाता है। इवेंचुअली इनका पूरा खाना खत्म हो जाएगा, और जैसे ही इनका खाना खत्म होता है, इनको खाना मिलना बंद हो गया। अब ये कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर पड़ते 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 एक समय वो आता है कि वो पानी में ही डूब जाते हैं। जब पानी में डूब जाते हैं तो ये किसी भी बायोलॉजिकल वेस्ट की तरह से इनका डिकम्पोजिशन होता है, बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया सूक्ष्म जीवी है, तो सूक्ष्म जीवी इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और इनको कंज्यूम कर लेते हैं एक्वा इकोलॉजी में। तो इस तरीके से प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण और उसका प्रदूषण का शमन सब नेचुरली हो रहा है। आपको इसमें कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पानी पहले भी प्रदूषित होता था और पानी अपने आप से ठीक भी हो जाता था। अभी जैसे रिसेंटली ड्यूरिंग ग्लोबल लॉकडाउन, आप सब लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, हर न्यूज चैनल ने, हर न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया कि नदियां साफ होने लगी, हवा साफ होने लगी। तो वो साफ होने का जो तंत्र है वो यही है। अब आ जाते हैं हमारे क्रिएट किए हुए प्रदूषण पे। तो हम प्रदूषण में क्या क्रिएट करते हैं? हमारा जो जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो हमारा किचन का जो वेस्ट वाटर है, उसके अंदर क्या होता है? हम भारत में जिस तरह का खाना खाते हैं, हम बहुत सारी तली हुई चीजें खाते हैं, हम पराठे में भी ढेर सारा हम घी तेल लगाते हैं। अब जब ये बर्तन धुलेंगे तो ये सारा घी तेल निकल के पानी में घुल जाएगा। तो ये जो घी तेल है इसको हम लोग
पानी की इंडस्ट्री में कहते हैं फैट ऑयल एंड ग्रीस, फॉग। अब ये फॉग का अपना एक गुणधर्म है, क्योंकि ये पानी से हल्का है, इसलिए पानी की सतह पे ये तैरेगा। अब इसके पानी की सतह पे तैरने से क्या होता है कि पानी का और हवा का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज, ये पानी की सतह को एकदम चिकनाई भरा बना के एक तरीके से एक प्रकार के दर्पण का शक्ल दे देते हैं, जिससे जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो एक ये इसका परिणाम है कि जो फैट ऑयल एंड ग्रीस जब भी पानी में जाएगा तो वो उसको एक तो ऊपरी सतह पे रहेगा और उसको चिकनाई देके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा देगा। तो इस वजह से सनलाइट पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई, तो फोटॉन्स नहीं मिले, उसकी वजह से आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कम होगी। ये तो हुआ एक चीज। दूसरी चीज, जो हमारा जितने भी हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट यूज करते हैं या डिटर्जेंट यूज करते हैं, कपड़ा धोने का साबुन या बर्तन धोने का साबुन या गाड़ी धोने का साबुन, किसी भी प्रकार का साबुन जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को साफ करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारा फॉस्फेट होता है। उसका जो उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें फॉस्फेट का उपयोग बहुत ज्यादा है। तो और कोई भी चीज जिससे हम कलर करते हैं उसके अंदर अमोनिया बहुत होता है, चाहे वो हेयर कलर हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, या किसी भी प्रकार की डाई हो, उसमें अमोनिया बहुत है। तो अमोनिया और फॉस्फेट इस तरीके से आ गए। जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स हैं, और उसके अंदर आपके सल्फेट्स हैं। तो ये सारी चीजें, फॉस्फेट, सल्फेट, हेवी मेटल्स, मिनरल्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारे वेस्ट वाटर को बनाते हैं। तो पानी के लिए तो कोई समस्या है नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से भी यही सब चीजें पानी में आती हैं। तो पानी का अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई जो जलीय खरपतवार हैं, जो वाटर वीड्स हैं, जलकुंभी है, जलपर्णी है, या वाटर लेट्यूस है, या अजोला है, हाइड्रेला है, ये सब आएंगे और ये कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो यहां तक तो कहानी में कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या ये है कि जो भी हम वेस्ट वाटर ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक इवेंट हुआ 10-15 दिन के लिए और फिर वो बंद हो गया। जैसे यदि कोई ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा थोड़ी कि वो लगातार सालों तक फटता ही जा रहा है। तो एक बार फटेगा, बहुत कुछ हवा में फेंकेगा, महीने भर, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना तक, 2 महीना तक मैक्सिमम उसका इफेक्ट रहेगा, और उसके बाद वो सारा सेटल कर जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम जो प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं, जो हम वेस्ट वाटर क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी डेली एक्टिविटी है। तो ये जो हम एडिशन कर रहे हैं वाटर बॉडी में, ये रेगुलर है, और ये रेगुलरिटी ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब तक वाटर वीड्स उसको एक्सेस को कंज्यूम करेंगी, तब तक हम नया डाल देंगे। तो वीड्स आती तो हैं, जो जलीय खरपतवार है वो आएंगे तो जरूर, लेकिन जाएंगी कभी नहीं, क्योंकि उनका जो फीड है वो रेगुलर ऐड हो रहा है पानी में। अब क्या होगा, वो पूरे सरफेस को कवर कर लेंगे, और जैसे ही उन्होंने सरफेस कवर किया, जो थोड़ी मोड़ी सनलाइट जो फॉग लेयर के बीच में से छन के जा भी रही थी, वो जाना भी बंद हो जाएगी। अब यहां से होता है डीके का प्रोसेस शुरू। पानी का जो खराब होने की प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज हमने पूरा सरफेस वाटर वीड से कवर कर दिया और पूरी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा पानी के अंदर, और जब लेवल घटेगा तो जितने भी प्राणवायु पे जिंदा है, जितने भी ऑक्सीजन पे जिंदा है ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब धीरे धीरे सफोकेट होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब उनकी जो डेड बॉडी है उसका भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होना है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रुक गया है। दूसरी तरफ पानी का एक बेसिक गुणधर्म है कि
कुछ भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूल यदि पानी में डालेंगे तो वो डिसइंटीग्रेट होगा। अब इस डिसइंटीग्रेशन के लिए चाहिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब डिमांड तो हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई हमारी रुकी हुई है। इवेंचुअली पानी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हो जाएगा एनारोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन का। अब जब एनारोबिक इन्वायरमेंट हो जाएगा तो प्रकृति फिर एनारोबिक लाइफ को जन्म देगी और एनारोबिक लाइफ करेगी एनारोबिक डाइजेशन। तो जो डिकम्पोजिशन एरोबिकली होना चाहिए था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए था, अब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसका एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ही वो तत्व है जिसकी वजह से आपको पानी भी, किसी भी रुके हुए या सड़ते हुए पानी के आसपास जो आपको बदबू आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब भी एनारोबिक डाइजेशन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होगा ही और वो बदबू क्रिएट करेगा ही। तो अब हमारा एक तो वो जलकुंभी और जलीय खरपतवार आ गई है। जो हमारी काई होती है, काई भी एक प्रकार की वीड है, काई भी इसी वजह से आती है। तो जलीय खरपतवार, काई, ये सारी चीजें ऊपरी सतह पे आ गई हैं, बदबू आने लगी है। अब ये दो चीजें हमको एक्सपीरियंस होने लग गई। अभी फर्दर डिटोरिएशन बाकी है। अभी जो भी फॉस्फेट और सल्फेट और नाइट्रेट और हेवी मेटल्स और मिनरल्स जो भी पानी में आ रहे हैं, ये किस प्रकार से आ रहे हैं? ये पानी में घुलित हैं या मिश्रित हैं, यानी कि या तो ये सस्पेंडेड हैं या तो ये डिसॉल्व हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से जो पानी की विस्कोसिटी है, जो लहर है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। यदि आपको अकेले चलना हो तो आप काफी फास्ट चल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दो दोस्तों को अपने साथ में रखें और उनके कंधों पे अपना हाथ रख लें और अब तीनों को साथ में चलना है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। उसी प्रकार जब ये जो कंटामिनेशन है, ये सारा का सारा कंटामिनेशन जब पानी में मिश्रित या घुलित होगा तो पानी की जो लहर है, पानी का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो पानी ठहरने लगेगा। अब क्योंकि हमारा एडिशन तो डेली का है, तो इसीलिए जो हम डेली डेली ऐड करते जा रहे हैं अपना सुबह जो अपशिष्ट जल है, उसकी वजह से पानी का घनत्व कम होते 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 इतना कम हो जाएगा कि पानी ऑलमोस्ट स्टिल दिखने लगेगा, एकदम रुका हुआ पानी। अब ये रुका हुआ पानी मच्छरों का घर है। मच्छर यहीं पे अंडे देते हैं, लार्वे में कन्वर्ट होते हैं और मॉस्किटो कॉलोनी बिल्ड कर लेते हैं पूरी की पूरी। तो मच्छरों का प्रभाव बढ़ा। मच्छरों के प्रभाव की वजह से आपका जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं, मच्छर जनित जो रोग हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब उस प्रभाव में उस क्षेत्र में बढ़ने लगे। फिर जो पानी है वो भी अब धीरे धीरे सड़ने लगा है, बिकॉज एरोबिक डाइजेशन है नहीं, एनारोबिक डाइजेशन है। अब हम लोग जो हैं, इंसान जो है, हम लोग सब ऑक्सीजन पे जिंदा हैं। जो एनारोबिक लाइफ फॉर्म है वो हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रिया से, हमारी जो जैविक प्रक्रिया है उसके बिल्कुल पलट है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए, हम ऑक्सीजन पे जिंदा हैं और वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा है। तो जब इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमें बीमार करेंगे, बिकॉज उनकी जो जीने की प्रक्रिया है वो हमसे बिल्कुल पलट है। तो वैसे हमारी बॉडी में भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इश्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन यदि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ई कोलाई कंटामिनेशन हो तो हमें डायरिया हो जाएगा, हमें डिसेंट्री हो जाएगी, हमें कॉलेरा हो सकता है। ये सब ई कोलाई के इन्फेक्शन हैं। अब हमारी बॉडी में है लेकिन फिर भी हमें बीमार करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में उनकी एक फिक्स जगह है, वो है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एरोबिक इन्वायरमेंट है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम पानी पिएंगे तो ये पहुंचेंगे स्टमक में और हमारे स्टमक में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। तो वो जब
उनकी जगह आप बदल देंगे तो वो हमको बीमार करते हैं। ठीक है? जैसे कि अभी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू में H1N1 वायरस होता है, तो H1N1 वायरस भी बर्ड्स के इंटेस्टाइन में होता ही है, लेकिन जब H1N1 वायरस कंटामिनेशन वाटर बॉडीज का हो जाता है और उसी को जब वही पक्षी पीते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं, उसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसकी एक स्थिर जगह है, उस जगह को जब आप बदलेंगे तो वो आपको बीमार करेगा। तो इस तरीके से वाटर कंटामिनेशन और वेक्टर बोर्न डिजीजेस दोनों आ गए पानी में। अब फिर भी हमारा एडिशन जो है वो बदस्तूर जारी है। तो अब क्या होता है कि जो मिश्रित और घुलित ये जो कंटामिनेशन है, ये नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे, नीचे की सतह पे ये सब स्थिर हो जाएंगे। ये जो सेटल डाउन जो लेयर है दैट इज कॉल्ड स्लज, जिसको हम कहते हैं जलाशयों में गाद। तो नीचे जो गाद जम गया उसकी वजह से अभी जो मैंने बताया था कि सॉइल कैपिलरीज होती है जिसके थ्रू पानी नीचे जाता है, वो जाना बंद हो जाएगा। ये सब जो गाद जमी है ये सॉइल कैपिलरीज को, मृदा कोशिकाओं को बिल्कुल चोक कर देंगे। अब इनके चोक होने की वजह से पानी का वर्टिकल मूवमेंट बंद हो गया। तो अब पानी क्या है, नीचे की गाद की लेयर और ऊपर की खरपतवार की लेयर के बीच में कैप्टिव है। आपने पानी को जेल में रख दिया है। अब जेल में तो कोई भी चीज फ्लरिश करेगा नहीं। तो इस तरीके से पानी का जो कंटामिनेशन लेवल है वो बढ़ता जाएगा और बदबू भी आ गई है, मच्छर भी आ गए हैं, काई भी आ गई है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है। तो जो पूरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है हमने उसको रोक दिया पूरी तरीके से। अब इसका इलाज क्या है? इलाज में यूजुअली लोग क्या करते हैं, एसटीपी बनाते हैं। अब एसटीपी जो आपका सूरज वाटर है उसको तो फिर भी कुछ हद तक शायद ट्रीट कर लेता होगा, लेकिन जो जलाशय में पहले से पड़ा हुआ पानी है उसका तो कोई इलाज नहीं है एसटीपी। तो एसटीपी लगाने से जो जलाशय का उपचार है वो तो नहीं हो सकता, ये तो तयशुदा बात है। दूसरा लोग क्या करने लगे आजकल, बायो रिमीडिएशन। ये बड़ा अच्छा कहने में लगता है कि ये तो प्राकृतिक है जी। अब ये प्राकृतिक क्या है कि हम बैक्टीरिया बाहर ग्रो करके उसको पानी में डाल रहे हैं। अभी बैक्टीरिया की एक जगह जरा सी मैंने पोजीशन बदली थी, जो इंटेस्टाइन है उससे निकाल के अगर स्टमक में डाल देता हूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूं, क्योंकि हम फिजिकली इम्प्लांट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को टू एन इकोसिस्टम वेयर इट डजंट बिलोंग। ठीक है, अब मतलब ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आपके घर में मान लीजिए चूहे बहुत आ गए, तो अब चूहे को भगाने के लिए एक हो गई आपकी फिजिकल प्रक्रिया एसटीपी निर्माण की। तो फिजिकल प्रक्रिया क्या है, आप चूहेदानी लाएंगे, उसके अंदर कुछ कुछ खाना बेट डाल के आप जगह जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आप उसको रख देंगे, चूहा आएगा पकड़ने के लिए और वो चूहेदानी जो है वो बंद हो जाएगी। आपने फिजिकली चूहे को रिमूव कर लिया। ये तो हो गया आपका फिजिकल रिमूवल। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे सरकारी टेंडर आते हैं कि जलकुंभी हटाने का टेंडर या ड्रेजिंग करने का टेंडर, डीसिल्टिंग का टेंडर, राइट। तो ये सारी हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने चूहेदानी रखी है और उसमें चूहा पकड़ के आपने बाहर ले जाके छोड़ दिया। ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग और स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आपने चूहे के आने की वजह को खत्म नहीं किया, ठीक है, आपने एक एक करके चूहे को पकड़ के बाहर छोड़ दिया। दूसरा है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया, उसने जगह जगह जहरीले रसायन का छिड़काव कर दिया और चूहा जहां है वहीं पे मर गया। आपके घर में पूरी बदबू फैल गई। अब आप अपने घर का एक एक सामान हटा हटा के देखेंगे कि चूहा कहाँ मरा है, फिर उसकी लाश को ले जाके बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये हो गया आपका केमिकल ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है कि ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो घर में सांप छोड़ दीजिए। अब चूहा जहां है, जिधर है, सांप वहां पहुंच के उस चूहे को खा लेगा। ये तो बहुत बढ़िया नेचुरल प्राकृतिक इलाज हो गया, लेकिन क्या उस घर में सांप के साथ आप रह पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं रह पाएंगे, राइट। जिस घर में 24-25 सांप घूम रहे हो वहां आदमी नहीं रह सकता। तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी इकोलॉजी या एक स्टेबल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बायोलॉजिकली,
तो वो उसके लॉन्ग लास्टिंग परिणाम होते हैं, वो आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाला है, इनफैक्ट आपके लिए वो बड़ी समस्या ही खड़ी करेगा, राइट। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं कि मंत्री जी आने वाले तो भाई अभी साफ कर लो, लेकिन वो एक परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि आपने जो ग्रास रूट लेवल है, तृणमूल जो स्तर है, वहां से आपने समस्या का निराकरण नहीं किया। तो निराकरण क्या होगा? अब इसको हम यदि ऐसे समझें कि साइंटिफिकली स्पीकिंग, वाटर बॉडी कंटामिनेशन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट ओवरलोड। तो न्यूट्रिएंट ओवरलोड कैसा होता है? जैसे हम किसी शादी में गए, हमने ज्यादा खाना खा लिया। अब ज्यादा खाना खा लिया तो हम उसके लिए सर्जरी तो नहीं करवाएंगे, उसके लिए हम हाजमोला खाएंगे, झंडू पंचारेस्ट खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज खाएंगे जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करे। तो दिस इज अ नेचुरल रेमेडी। पानी का एक अपना जलीय तंत्र है, यदि हम उसको सुदृढ़ करते हैं तो उस तंत्र में इन सब चीजों की खपत नैसर्गिक रूप से हो सकती है। सो अब हमारा जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस पर आधारित है कि जल में एक नैसर्गिक जलीय तंत्र है, उस तंत्र को यदि सुदृढ़ कर दिया जाए तो ये सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कोई भी वाटर बॉडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इकोलॉजी है, उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। तो कोई भी वाटर बॉडी को हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उसके हिसाब से मेडिसिन बनती है। हमें 5 इनपुट चाहिए होते हैं। लॉन्गलेट क्या है वाटर बॉडी का, जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, और वहाँ पे आसपास में किस तरह का वेजिटेशन है, ये हमें इसलिए चाहिए होता है जिससे हमें ये पता लगे कि जब आंधी तूफान आएगा तो किस प्रकार के पत्ते, फूल, बीज आदि उसके अंदर गिरेंगे, उसका फॉस्फेट लेवल क्या है। तो हमको किस प्रकार से उस तंत्र को सुदृढ़ करना है कि ये जो गिरना अनिवार्य है, इसको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। जो लॉन्ग लाइट हमको चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जल, वायु और मृदा की जो नैसर्गिक स्थिति है उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, कृषि जलवायु क्षेत्र में, वो हमको पता लगे, और उस प्रकार से हम मेडिसिन, जो हम दवाई बनाएंगे उसके अंदर उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फिर हमें चाहिए होता है कि पानी का कलर क्या है, पानी की सतह के ऊपर किस प्रकार का जलीय खरपतवार का आच्छादन है, या वहाँ पे सूए जा रहा है कि नहीं, अपशिष्ट जल का क्या प्रबंध है, या वहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम 4-5 इनपुट के बेसिस के ऊपर हम वाटर बॉडी को स्टडी करते हैं, और वो स्टडी करने के बाद हम उस मेडिसिन को बनाते हैं। मेडिसिन जो होता है वो जड़ी बूटियों का अर्क है, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है, और ये एक्सट्रैक्ट को हमको उसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन की जो फ्रेश वाटर है उसमें डाइल्यूट करना होता है टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द वाटर, और इसको हम वाटर बॉडी में किसी भी एक जगह पर प्रवाहित कर देते हैं, पोर इन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसको हम छोड़ते हैं तो वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल तीनों लेयर्स पे चेंजेस आते हैं, बिकॉज ये तीनों छोटे छोटे सबसेट्स हैं फॉर द लार्जर डोमेन कॉल्ड इकोलॉजी। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये पावनोमिक्स डाइल्यूटेड कंसंट्रेट है दैट इज पोर्ड इनटू वाटर। ये 3 अलग अलग धाराएं इसलिए दिखाई गई हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये पानी की धार है। इसको आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको किसी एक ही जगह पे इसको छोड़ देना है। अब जब इसको हम पानी में छोड़ते हैं तो वाटर बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सबसे पहले तो केमिकल लेवल पे चेंजेस लाते हैं, फिर बायोफिजिकल लेवल पे चेंजेस लाते हैं, और फिर ओवरऑल इकोलॉजी जो है वो रिसेलेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम केमिकल लेवल, जो रासायनिक स्तर है, उस पर क्या चेंजेस आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पानी में भर भर के फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होता है, एक सिंगल एटम होता है फॉस्फोरस का, और 3 या 4 एटम हो सकते हैं ऑक्सीजन के।
तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट होता है और फॉस्फोरस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अलग हुई, पानी के अंदर हुई, तो ये सबसे पहले जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है, जो घुलित प्राणवायु का जो स्तर है, उसको बढ़ाएगा। अब उसके बढ़ने से क्या होता है, पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर गया। पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने की वजह से, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से जो एनारोबिक डाइजेशन है वो सफर होगा, क्योंकि एनारोबिक डाइजेशन सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही हो सकता है। जब ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने लगा तो वो कम होने लगेगा, जो एनारोबिक लाइफ है वो सफोकेट होने लगेगी, उसके लिए सांस लेना मुश्किल होने लगेगा। तो पहला तो ये रिएक्शन हुआ। अब ये जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लगातार चल रहा है, भर भर के उसमें फॉस्फेट है, तो इवेंचुअली आपके जो पानी में आप मतलब करीबन 45 मिनट से 1 घंटे के बाद जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसके 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आप पूरे पानी की सतह पे छोटे छोटे एकदम बबल्स देखेंगे। ये बबल जाके जो ऊपर की जो फॉग की लेयर है उसमें फंसते चले जाएंगे, और फॉग लेयर की जो एक स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि वो कब तक होल्ड कर सकता है किसी भी प्रहार को। तो जब फॉग लेयर है, एक तो वो वैसे ही बड़ी थिन लेयर होती है, और ऊपर से जब नीचे से बबल्स आके उसमें फंसते चले जाएंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चैलेंज होगी। इवेंचुअली ये जो बबल हैं ये सतह पे आके फूट जाएंगे। जब ये फूटेंगे तो फॉग लेयर में एक छेद हो जाएगा, और उस छेद से सनलाइट वापस अंदर जानी शुरू हो जाएगी। सनलाइट के अंदर जाते ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ये तो एक लेवल की एक्टिविटी हुई। रासायनिक स्तर पर क्या हो रहा है, अब बायोफिजिकल लेवल पे क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो चार्ज है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए, सूक्ष्म जीवी प्राणी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। जैसे हम लोग, कोई आदमी जब बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स उसको एक चेस्ट के ऊपर एक शॉक देते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसरक्शन। तो जो ये शॉक की वजह से आदमी वापस होश में आता है, वो सांस लेना शुरू करता है। तो कुछ इसी प्रकार का शॉक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को लगता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो वापस से रिसरेक्ट हो जाते हैं, वापस से जिंदा हो जाते हैं। वो जिंदा होते हैं तो फिर उनकी दो रिक्वायरमेंट है, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो आपने डीओ लेवल ऑलरेडी बढ़ा रखा है, तो ये जो आपने डीओ लेवल यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर जैसे ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसका प्रबंधन आपने कर दिया। अब दूसरी चीज उनको चाहिए कुछ खाने के लिए, तो जो सिंगल एटम ऑफ फास्फोरस है जो कि सेपरेट हुआ था फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, उसको वो कंज्यूम कर लेंगे। बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उनको खाना भी उतनी ही सूक्ष्म अवस्था में चाहिए। एक एटम, तो एक एटम आपने अलग करके रखा हुआ है फॉस्फेट में से, उसको ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे। अब ये जब खाते हैं उसको, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम है वो है सेल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक सेल ने कुछ खाया तो वो डिवाइड होकर 2 हो गया, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे। अब ये जब बढ़ना शुरू होंगे तो ये न्यूट्रलाइज किसको करेंगे, ये कंज्यूम किसको करेंगे, ये जो आपके फॉस्फेट और सल्फेट और नाइट्रेट और अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये बायोलॉजिकली डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब बायोलॉजिकल डाइजेशन भी चालू हो गया और जो केमिकल डाइजेशन है वो भी चालू हो गया, ऊपर से सनलाइट भी आ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी चालू हो गया। यानी कि जो खाना वीड के लिए उपलब्ध था, अब वो नैसर्गिक रूप से उसका निस्तारण चालू हो गया है। यानी कि वीड अब कमजोर होने लगेगी। जो भी आपके जलीय खरपतवार है, अजोला है, काई है, हाइड्रिला है, या आपका जलकुंभी है, या आपका वाटर लेट्यूस है, उनका भोजन जो है वो आप एक दूसरी तरीके से कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका भोजन कम होने लग गया, तो वीड धीरे धीरे वीक होती जाएंगी।
जब वीट बहुत वीक हो जाएंगी तो वो पानी में डूब जाएंगी, तो वो पानी में डूब जाएंगी तो वो भी डिकम्पोज हो जाएंगी। तो वीट चली गई, एनारोबिक डाइजेशन खत्म होने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन रुक गया, उसकी वजह से बदबू चली गई। अब जब ये सारी चीजों का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं कहाँ, या तो मिश्रित हैं या तो घुलित हैं। तो मिश्रित और घुलित जो तत्व हैं उनका यदि निराकरण हो रहा है नैसर्गिक रूप से, तो पानी की जो विस्कोसिटी है, जो घनत्व है, वो घटने लगेगा। वो घटने लगेगा तो लहरें आ जाएंगी। लहरों के आने का मतलब ये है कि अब मच्छर उसके अंदर ब्रीड नहीं कर सकते, तो मच्छर भी चले गए, तो बदबू भी चली गई, फॉग लेयर भी चली गई, और जो मच्छर हैं वो भी खत्म हो गए, और जो काई और जलकुंभी है वो भी कमजोर पड़ने लगी, और वो भी गायब हो जाएगी इवेंचुअली। अब आ जाती है बात नीचे जो गाद की जो लेयर है, जो भरती जा रही है जलाशय को, तो उसका डिकम्पोजिशन भी चालू होता है, और जब उसका डिकम्पोजिशन चालू होता है तो पानी की गहराई जो है, जहां गाद भरी हुई थी वहां पे भी पानी आएगा। तो यदि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पानी का स्तर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे की जो काई है, नीचे की जो गाद है वो खत्म हो रही है। तो गाद का डिकम्पोजिशन होगा, फिर वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर सतह पे आएगी। जब ऊपर सतह पे आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पानी हम साफ कर रहे थे, ये तो पानी गंदा हो गया। पानी गंदा नहीं हुआ है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। पहले नीचे डिकम्पोज होगी तो वो लाइटर देन वाटर हो जाएगी, तो वो ऊपर सतह पे आ जाएगी। अब ऊपर से उसको सनलाइट मिल रही है तो उसका डिकम्पोजिशन नीचे से भी चल रहा है और ऊपर से भी चल रहा है। तो इवेंचुअली वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी में जितनी भी गाद है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी। उसकी कंज्यूम होते ही सॉइल कैपिलरी ओपन हो जाएगी, और आपका जो जलाशय है वो सदा नीरा हो जाएगा, बारहमासी हो जाएगा। यानी कि ना तो वो कभी सूखेगा और न तो कभी वो फ्लड होगा। तो पानी बाहर स्पिल ओवर इसलिए होता है बिकॉज पानी नीचे नहीं जा रहा। जब वर्टिकल मूवमेंट ऑन है तो फ्लडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम पुनर्स्थापित करते हैं, और उस पुनर्स्थापन की वजह से आपका पानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सबका निराकरण हो जाता है। अब सवाल होता है टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो बुलबुले हैं वो तो आपको 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर भी दिखाई देने लगेंगे, पहली डोजिंग के टाइम से ही। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइमलाइन कि आप पहली ट्रीटमेंट करने के बाद आप आधे पौने घंटे तक वेट करें और आप देखें कि बुलबुले आ रहे हैं कि नहीं। जितने ज्यादा बुलबुले आ रहे हैं आप समझ लीजिए उतनी ही अच्छे से वाटर बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब जैसे किसी भी पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं ना कि भाई बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है मेडिकेशन को, या हमको मेडिकेशन बदलनी पड़ेगी बिकॉज ये मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं दिख रही है। तो ये मेडिकेशन के प्रति जो जलाशय का रिस्पॉन्स है वो ये है कि ऊपर जो बुलबुले हैं वो आधे पौने घंटे के बाद कितने आ रहे हैं। यदि अच्छी भरी मात्रा में तादाद में आ रहे हैं यानी कि ये अच्छी बात है, और वाटर बॉडी इज रिएक्टिंग वेल। दूसरी चीज, जब आपको करीबन 24 घंटे का सनलाइट एक्सपोजर होगा, यानी आप मोटा मोटी लगा के चलिए कि एक दिन में 8 घंटे धूप आती है, तो 3 दिन में आपकी 24 घंटे की धूप कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 दिन में आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो बदबू आ रही थी वाटर बॉडी से वो अप टू 90% खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बदबू सबसे पहले बुलबुले आए, उसके बाद बदबू गायब हुई। पैरेलली आपका जो वाटर विस्कोसिटी है, जो पानी का घनत्व है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो पानी की ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और करीबन पहले 10 से 15 दिन के अंदर में जितनी भी मॉस्किटो कॉलोनीज हैं, जो भी मच्छर हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। यदि मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है तो आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाटर बॉडी के आसपास रेड ड्रैगन फ्लाइज, बहुत सारे लोग उसको यहाँ हिंदी में हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि दीज आर द प्रेडेटर्स फॉर द मॉस्किटो। ये मच्छरों को खाते हैं, मच्छर इनका भोजन है। तो यदि मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है तो नए मच्छर पनपना तो ऐसे बंद हो जाएंगे कि पानी में लहरें आ गई। लेकिन जो
पैदा हो चुके मच्छर हैं उनको खाने के लिए रेड ड्रैगन फ्लाइज आ जाएंगी और वो उसको कंज्यूम कर लेंगे। ये पूरा इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजी है, ये सब कुछ अपने आप चल रहा है। जब रेड ड्रैगन फ्लाइज बहुत सारी आ जाएंगी तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पक्षी भी बहुत सारे आ जाएंगे क्योंकि वो रेड ड्रैगन फ्लाइज को खाते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अपने आप रीइस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो बदबू चली गई और मच्छर चले गए, और डिपेंडिंग अपॉन कि वीड कौन सी है, जैसे जो जल परडी है, जो जल कुंभी है, वो बहुत ही स्ट्रांग वीड होती है। अगर आप उसको पानी से निकाल के सड़क पे भी रख देना तो भी वो 1 महीना जी जाएगी, और उसको जब भी पानी मिलेगा वो वापस से जिंदा हो जाएगी। तो ये बहुत ही स्ट्रांग वीड होती है, इसको खत्म होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन बाकी जो वीड्स हैं जैसे वाटर लेट्यूस है या वाटर लिलीज है, ये तो 1 महीने में गायब हो जाती है, ठीक है। या अजोला है, ये बड़ी जल्दी गायब होता है। हाइड्रिला अगेन थोड़ी सी रगड़ है, तो हाइड्रिला को गायब होने में आप लगा लीजिए कि करीबन 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा। वीक जरूर हो जाएगी लेकिन पूरी तरीके से गायब होने में 2-2.5 महीने का टाइम भी लग सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चालू होता है। अब जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो है डिसोल्यूशन ऑफ द स्लज, जो नीचे की गाद है उसका पूरा कंज्यूम होना। अब गाद है कितनी, ये यूजुअली हमको कोई भी जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो बताती नहीं है। तो इस वजह से अब हमको ये अजम्पशन पर ही काम करना पड़ता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि रिसरेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम 12 महीने में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने रिसरेक्शन होता है, अगले 3 महीने रिस्टोरेशन होता है, और आखिरी के 6 महीने रिजुविनेशन होता है। इसमें आपकी मेहनत धीरे धीरे घटती चली जाएगी। पहले तो डेली ट्रीटमेंट होगा, फिर थोड़ा ट्रीटमेंट घटेगा, हफ्ते में 2 बार 3 बार आ जाएगा, फिर और घटता चला जाएगा। इवेंचुअली आपकी वाटर बॉडी जब पूरी तरह रिसेलेक्ट हो जाएगी तो 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद वाटर बॉडी उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में वो बनी थी। अब वो बनी भले 600 साल पहले हो, 800 साल पहले हो, वापस उस कंडीशन को हम रिस्टोर कर देंगे 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद ये अथॉरिटी पे है कि वो आपको मेंटेनेंस देते हैं कि नहीं देते हैं। इसका एक रिपल इफेक्ट ये भी होता है कि जब वाटर पूरी तरीके से रिजुविनेट हो जाता है तो दिस वाटर बिकम्स न्यूरो इम्यूनो बूस्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यदि इसी पानी से खेती की जाए, उसको हम इंटीग्रल इकोलॉजिकल फार्मिंग बोलते हैं, तो यदि इसी पानी से खेती की जाएगी तो आपको एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार के केमिकल या ऑर्गेनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि किसान की जो लागत है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, खेती की लागत ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि सिवाय उनको सिंचाई के और कुछ भी नहीं करना, और सिंचाई भी फ्लडिंग नहीं करनी है। यदि ड्रिप इरिगेशन का वेंचर लगा हुआ है तो आपको ड्रिप इरिगेशन का इनपुट यहाँ से लेना है। आपको सिंचाई करने का सिर्फ एक तरीका है, वो भी सुबह सूर्योदय के टाइम पे जलाशय के पानी का छिड़काव पत्तों पर। दैट्स इट। मतलब आपकी 90% पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई खेती में। तो खेती में अभी जो तरीका है लाजली जो ज्यादातर किसान अपनाते हैं वो है फ्लडिंग, कि पानी खोल के छोड़ दो खेत में। वो तरीका हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, और जो यील्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपका जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है उससे बेटर होगी। मतलब केमिकल बेस्ड फार्मिंग में यदि आपकी 1 एकड़ से मान लीजिए 2 क्विंटल की उपज है, तो आपको कम से कम 2 क्विंटल की उपज इस तरीके से भी आएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 का 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने टाइम से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि पिछले 30 साल से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी खेत में और वहां 2 क्विंटल की फसल आ रही है, तो 2 का वो हो सकता है 2.25 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए। यदि आप पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है 2 का 4 हो जाए। तो इट डिपेंड्स कि आप केमिकल कितने समय से उस मिट्टी में डाल रहे हैं, और आप जो मिट्टी का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको कितना खराब कर चुके हैं। तो this is how you can use it in agriculture also, and you get a
वंडरफुल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। तो जो किसानों की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है वो फर्स्ट क्रॉप साइकिल से ही प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, इनपुट भी कम हो गया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। नाउ कमिंग ऑन टू एनिमल हस्बेंड्री, यदि आप मत्स्य पालन करना चाहें तो आप इसी जलाशय में कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो नेशनल एवरेज है वो 1 एकड़ से अबाउट 3000 to 4000 फिशेस की है। यहाँ पे आपको उससे बेटर प्रोडक्शन मिलेगी यदि आप अपने मत्स्य विभाग में रजिस्टर्ड हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल अवार्ड मिलता है वो 5000 पे मिलता है, वेरएस आपका प्रोडक्शन कम से कम भी होगा तो 5000 से तो ऊपर ही होगा। अब अगर हम पशुपालन की बात करें, इसी पानी को आपने पशुओं को पीने के लिए देना है। इसी पानी से यदि गाय भैंस है आपके पास तो इसी पानी से उसका बाड़ा धोना है, और आपकी पूरी एनिमल हस्बेंड्री जो भी आपका पशुपालन है वो पूरी तरीके से रोग मुक्त होगा, और आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज करना पड़ेगा। यदि आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपकी लागत भी घट रही है और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस वाटर। सो अगर हम बात करें रेवेन्यू एंड सस्टेनेबिलिटी की, तो अर्बन में हमको टूरिज्म है या आपका सैनिटेशन हाइजीन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलेंगे। अगर रूरल की बात करें तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, विलेज टूरिज्म, सैनिटेशन हाइजीन, एनिमल फार्म, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनर वाटर बॉडीज, ये सारी चीजें आपको रूरल में मिलेंगी। तो सस्टेनेबिलिटी एंड रेवेन्यू दोनों पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो अर्बन के पर्सपेक्टिव में यदि देखें, सारा सीवेज और वाटर बॉडीज में जाने दें, वाटर बॉडीज को आप ट्रीट करें, वाटर बॉडीज को ट्रीट करने के बाद आपको एक क्लीन वाटर बॉडी तो मिलेगी ही, ये ही वाटर बॉडी आपका एयर पोल्यूशन मिटिगेशन करेगी। इसी वाटर बॉडी के पानी को आप लिफ्ट करके अपना ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कर सकते हैं, बिकॉज ये पानी जो है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इट इज गुड वाटर फॉर लाइफ पर्पसेस। लेकिन जो मनुष्यों के पीने का पानी है उसके लिए WHO के स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो WHO के स्टैंडर्ड्स पे पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। आप मैकेनिकली ट्रीट करें, आरओ प्लांट में डालें, दैट इज प्योरली अप टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। एक्वीफर रिचार्ज आपका, क्योंकि सॉइल कैपिलरीज ओपन हो गई तो एक्वीफर रिचार्ज भी चल रहा है। और एक बड़ा मुद्दा है कार्बन क्रेडिट्स, बिकॉज हर वाटर बॉडी जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो कार्बन क्रेडिट्स उससे जनरेट होते हैं। ये कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम किया जा सकता है। जो नेशनल सीडीएम अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, वो कार्बन बाजार लगाते हैं जहाँ पे ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं इनको बेचा जा सकता है, लाइक एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज। सिमिलरली रूरल में जो वाटर बॉडी है उसके अंदर चाहे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ रहा हो, चाहे विलेज सीवेज आ रहा हो, उसको आप ट्रीट करें। दूसरा इनपुट यहाँ पे विलेज में एक और वेस्ट है, एनिमल वेस्ट। तो एनिमल वेस्ट आपने क्या किया, बायोगैस प्लांट लगाया, बायोगैस प्लांट से आपने फ्यूल ले लिया, बायोगैस ले ली, और जो उसका वेस्ट है वो है स्लरी। तो स्लरी को भी आप वाटर बॉडी में जाने दें, वहां पे आप ट्रीट करें, और ये पानी न्यूरो बूस्टर हो गया। अब यही पानी पीने का पानी बन गया पशुओं के लिए, और यही पानी इरिगेशन का पानी हो गया फॉर द एग्रीकल्चर। प्लस इसमें भी आप कार्बन क्रेडिट क्लेम कर आलू परवल है और पचमेला दाल है और पालक। ये कोई सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें एनजीओ का पार्टिसिपेशन कैसे होगा। चलो हम नगर पालिकाओं को या पंचायतों को तैयार भी कर लेते हैं वाटर बॉडीज क्लीन करने के लिए, तो प्रोसेस क्या होगी फिर, आपके साथ कैसे एसोसिएट हो पाएंगे? सर काम तो एनजीओ नहीं करना, हम लोग तो कोई काम करते नहीं डायरेक्टली, हम तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं।
हाँ, तो टेक्नोलॉजी हमें आपको मिलेगी फिजिकल कैसे? क्योंकि एग्जीक्यूशन आप एजेंसी तो चाहिए ना। हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट करने के हेलो। लिए एक एजेंसी चाहिए हु विल पिक अप द प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट मान लीजिए अभी जल शक्ति अभियान के अंदर में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, अभी एक प्रोजेक्ट चला रही है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी हम हैं, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आप बन सकते हैं। जो फंडिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी, एग्जीक्यूशन आपको करना होगा। आप अपने नीचे कोई जगह जगह पे जो स्मॉलर एनजीओ होते हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। दे कैन बी योर एग्जीक्यूशन आर्म। We will only be providing the technology. We don't execute the नहीं, project. दिक्कत तो फंडिंग की है ना, पंचायतों के पास फंड्स अभी है नहीं उस तरीके का। सर 15वें वित्त आयोग में हर पंचायत को ये आपके जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको सुदृढ़ करने के लिए 1 से 5 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पंचायत भारत सरकार ने अभी अभी डिस्कस किया। वो प्रोजेक्ट बनाने की काबिलियत भी तो होना ना, वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है यहाँ। हाँ, तो सर पंचायत में तो प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, तो फिर वो बनाएगा कौन? आप जैसे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। नहीं नहीं, हमारे जैसे नहीं, वो तो आपके जैसे लोग ही चाहिए जो उसको आके समझ के बना के दें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काफी कुछ अभी साफ है। मैं बालाघाट से हूँ, मध्य प्रदेश। जी। तो अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है स्थिति। यदि हम 1-2 गांव पायलट लेवल पर ले पाए तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं, और उसमें हमें आपका सहयोग लगेगा। हाँ, तो हम तो है ही ना सर सहयोग करने के लिए, इसलिए तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सहयोग से मेरा मतलब टेक्निकल सहयोग भी चाहिए ना। प्रोजेक्ट किस शेप में बनेगा, कैसा रहेगा, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ग्रांट कब मिलेगी, वो सब चीजें समझाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जी, हम कन्विंस तो कर तो सकते हैं, चलिए सरपंचों को कन्विंस हमारी कर तरफ सकते से पूरा रहेगा सर। बाकी एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन फॉर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमारे निखिल जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसके लिए। ही इज अ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट आल्सो विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो वो आपको काफी हैंड होल्डिंग इस बारे में दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो जैसे और कोई मेरे भी कुछ सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल मैम। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं जैसे चेक डैम्स का काम करती हूँ, वहां पर 2-3 महीने पानी रुकता है बड़े पैमाने पर, जो कि कम से कम 4-6 किलोमीटर का स्पैन होता है। लेकिन वो 2-3 महीने के अंदर सूख जाता है और फिर वो पानी कुओं में पहुंच जाता है। तो कुओं के अंदर भी वो सारा कैपिलरी एक्शन और वो सब, because it reaches the wells by the natural capillary action of the soil. So wells के अंदर भी ये सारा जो साइकिल आपने एक्सप्लेन करा वो उसी तरह से चालू रहता होगा, क्योंकि वेल्स के अंदर भी सिल्टेशन। नहीं, वेल्स में मैम एक समस्या ये होती है कि उनकी गहराई ज्यादा होती है और उनका जो सरफेस पे जो एरिया है वो बहुत कम रहता है, तो इसलिए सनलाइट इतनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, सनलाइट तो जो आप कैनाल से चेक डैम की बात कर रही हैं जी, हाँ, नहीं मैं ये कह रही तो हूँ जो कि आप सनलाइट कैनाल से चेक डैम की बात कर रही हैं उनको डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है कि जैसे आपका ये कहना है कि उसमें 4-6 महीने पानी रहता है, तो हम उसकी लॉन्गिविटी बढ़ा सकते हैं। 4-6 महीने नहीं रहता है, 2-3 महीने रहता है, क्योंकि फिर बाद में वो लोग रबी की फसल उसी जगह में लेते हैं जो कि थोड़े दिन पहले तक पानी की धूप में था। तो उसी एरिया में वो लोग फिर खेती कर देते हैं। तो क्योंकि वो तब तक पानी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने वहां पर बहुत ज्यादा कुएं बना रखे हैं, तो वो सारा पानी नीचे पहुंच जाता है, या तो एक्विफर्स में और या तो फिर कुओं में, जहां पर कि वो किसानों को उपलब्ध हो सकता है वेल्स के थ्रू। हाँ, तो ये तो हुआ ये वाली बात जो मेरे केस में मैं रूरल समस्याएं फेस कर रही हूँ। तो कुओं का पानी साफ करने के लिए भी क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, जो कि कुओं में भी जो फ्लोटिंग मैटर है वो भी, और जो
उसकी पारदर्शिता है वो भी किसी तरह से कायम हो सके, उसके बारे में आपने कुछ सोच रखा है क्या? मैम जैसे अभी मैं केस स्टडीज पे जब आऊंगा तब मैं आपको एक केस स्टडी हैदराबाद की भी बताऊंगा। तो हैदराबाद में एक कल्पना रमेश जी हैं जो काफी नेशनल लेवल पे भी ऑपरेट करती हैं। पीएम मोमन में अभी उनको select आप भी इसको किया था। थोड़ा शॉर्टन करके बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 1.5 घंटे जी की ऑलरेडी ये वर्कशॉप हो गई है, तो अभी आप अच्छा थोड़ा सा कंसाइज कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे और भी कमिटमेंट्स है। जी। तो मैम रेवेन्यू एंड सस्टेनेबिलिटी के बाद मेरे को सिर्फ केस स्टडीज पर ही आना था, तो आप यदि बोले तो मैं केस स्टडीज पे जाऊं। हाँ, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा। जी बिल्कुल। हाँ। सो अभी मैं कुछ केस स्टडीज आपको बता दूं। ये मोतीपुर काई लेक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। जैसा मैंने आपको बताया, ये सीवेज सारा कॉलोनी का इसमें आ रहा था। इसका नाम ही काई तालाब है, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी काई होगी। दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी डिड विद गवर्नमेंट। ये एडुडू लेक है अहमदाबाद। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फंगल ग्रोथ भी थी यहाँ पे पानी के अंदर, एल्गल ब्लूम भी था। और ये सिर्फ 15 दिन का असर आप देख सकते हैं। ये सेम वाटर बॉडी है। ये दिल्ली है, झीलवाला पार्क, काई और फॉग लेयर आप देख सकते हैं। ये भी जो डिफरेंस है, दिस इज ये 4 जून की फोटो है और ये 15 जून की फोटो है। तो कुल 15 दिन का ये भी डिफरेंस आपको दिखाने के लिए ये स्टडी है। ये आप देख सकते हैं वाटर लिली, अबाउट 70% जो टॉप सरफेस है वो इससे कवर्ड था। 1 महीने में, बिकॉज वाटर लिली बहुत ही कमजोर वीड होती है, 1 महीने में ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। तो ये इसको भी प्रसाद नगर वाटर लेक है लिली दिल्ली। कहेंगे, और ये भी पानी। ये पहले की काई की परत आप देख सकते हैं और ये बाद की है। जी प्लस और ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। और ये कंडीशन थी, 1 महीने हमने इसको ट्रीट किया। इसकी केस स्टडी हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है और वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और वहाँ के जो नाविक हैं, जो वहाँ बोटमैन हैं, उन्होंने इसमें काफी डिफरेंस महसूस किया। ये कोडीकुंटा लेक है हैदराबाद में। जो आप कुएं की जो बात कर रही थी, एक कुआं हमने लेकिन एक कुआं जो है उसको भी हमने रिस्टोर किया। सिर्फ पॉइंट ये था कि उस कुएं का जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो एनर्जी इंजन है वो सनलाइट है। तो सनलाइट की उपलब्धता डेफिनेटली आवश्यक है। यदि ऊपर का कुएं का मुंह काफी बड़ा हो तो ये लाल दिघी तालाब है अयोध्या में। ये जो हमने लास्ट ईयर नवंबर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री हैं, टूरिज्म मंत्री हैं, पर्यटन, उन्होंने इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट। और ये अभी हमने अगस्त में जाके खत्म किया। डेली आ रहा था और वो हमने ट्रीट किया है। इसकी भी केस स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। और ये 8 एकड़ की लेक में 2.8 to 3.5 mld का सीवेज डेली आता है। So that's about the case studies. ये हमने I wanted to ask you one question. That can I ask you a question, please? जी मैम। I wanted to Yeah, ask ma'am, you, please. a lake which is about 8 kilometers in span, what is the cost of cleaning that lake? Approximate, I'm saying. Ma'am, cost we can work out only after we study the water body. Because जब तक हमें ये नहीं पता है कि मेडिसिन में लगना क्या क्या है। I agree, but some approximation. Ma'am, maybe Nikhil ji can help you on that. मेरे को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते
अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे कुछ बनाते हैं क्या, मतलब लाइक सैंपल of the product which you make in small bottles, which I can try out in my farmhouse or in very small water bodies which I have made over there. Is it possible that I get a small Ma'am, sample how small bottle? is the water body? No, these are small water Ma'am, how bodies. small is the water body? Say about say about 20 feet by 10 feet by 4 feet. मैम इतनी छोटे में तो काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज द बेयर मिनिमम जो हमने सारी कैलकुलेशन करके देखा है, और जो बेयर मिनिमम हमें सरफेस एरिया चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 9 to 10,000 स्क्वायर फीट. अगर उतना सरफेस एरिया नहीं है तो इनफ सनलाइट डज नॉट गेट कलेक्टेड. अच्छा, तो वो आपको वो इफेक्ट पता नहीं लगेगा. ओके. लेकिन अगर आपका कोई एक्वेरियम है जो कि ऐसी जगह पे रखा है जहां धूप आती है, तो उसके उसमें काम करने के लिए आई कैन गिव यू समथिंग. अच्छा, क्योंकि वो चारों तरफ से धूप आती है, तो वो एक्वेरियम में जो सरफेस एरिया है वो प्रॉपर सनलाइट कलेक्शन हो पाता है. अच्छा, उसके लिए वी कैन मेक अ सैंपल एंड गिव इट टू यू. okay. So then I'll get in touch with Abhilash ji for sample of your product, which I can try out on a very, very small scale. So that is, and then for each well of about 20 feet diameter, which is in the open. In Rajasthan, there is lots and lots of sunshine. There is no dearth of sunshine, and about 70 feet deep. So for that kind of a well, how much would the cost be? That approximate cost I would like to know. If your and there are 5 inputs which are required from the site. अगर वो input हमें मिल जाएंगे तो we will create something and we'll share it with you. Yes. Along with the cost, of course. Yes, please. And it was very, very enlightening. Your whole presentation was extremely detailed and very enlightening, and I'm very grateful to you. And what I immediately understood was that there should be oxygenation and circulation of the water. So even if my water bodies are very small on my farm, I should put some kind of a circulation process where the water is thrown up in the air and then it falls down also. That should also benefit to an extent, I felt. Ma'am, आपकी जो farm की water bodies हैं, are they cemented from the bottom or they're left kacha in the bottom? No, they are not left kacha. They have a plastic at the bottom. Okay. Plastic at the bottom. Okay. Can this plastic be removed? If it is removed, then it takes a very, very long time for me to put it up again. The plastic, if it is removed, all the water will go inside. None of it will remain. If I can make that water stable, would you like to remove it? Yes, I would love to. In your farm, do you have availability of cow dung manure for? Yes, I have lots of, because I was very interested in your project because it was called Cownomics, and I have Gir cows on my farm. Okay. So I have 4 or 5 Gir animals on my farm. Okay. So perfect. As far as your farm is concerned, we can definitely restore all the water bodies in your farm, provided we get cow dung manure. As you said, you have Gir cows. Yes, we have plenty of that. So you can just share there are 5 key inputs which are required from your farm site. You can ask any one of your farm guys to collect that data and send it to us. It is just photographs and videos, and the location long lag. We will do the study and we'll tell you how to restore all the water bodies in your farm. Okay, lovely. That will be great. So thank you very much. And I would like to take your leave, please. Definitely. Thank you. Thank you. Anybody else? Any other questions? Suresh ji, Pawan ji. Okay. Right, sir. So we'll take a leave. Okay, Abhilash ji. Fine, okay, sir. Nikhil ji. Thank you, sir. Thank you for your time. Thanks for your time, sir. We'll again connect later. Right.